Hello everyone, welcome to the second lecture of our chapter pressure, wind, storms and cyclones. And आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं pressure in fluids. So if you all remember, lecture number 1 we have done where we have understood the idea of pressure, the definition of pressure, the formulas, the units and a lot of things we have discussed, and then we also solved few questions on it. So if you have not watched the lecture number 1, first go and watch the lecture number 1. That will give you the clarity or the idea what is pressure actually. Then you will be able to understand what we are going to discuss today, that is pressure in fluids, right? So this is the topic or the agenda of our today's lecture. So this is your Angstrom Classes YouTube channel. My name is Nikhil and I welcome you all to the very amazing lecture of this chapter where we will cover pressure in fluids. So I hope all of you are excited and all of you are ready with your notebook and pen. So without any further ado, let's get started with the lecture. And my first question to you is, what do you mean by pressure in fluids? Think about it. Pressure in fluids का मतलब क्या होगा? Pressure तो हम लोग जानते हैं, right? We know that pressure is something that we have defined in the previous lecture. It is the thrust per unit area or the force per unit area. That is called pressure. We also know that the pressure has the SI unit of pascals, which is also newtons per meter square. And we have also discussed that why pressure is a scalar quantity and it's not a vector quantity, even though it depends on force. Pressure जो है वो force पे depend करने के बावजूद ये vector quantity ना होके ये scalar quantity क्यों है? That we have also discussed in our first lecture. So if you really want to know that, if you have not understood that and if you really want to know, just go and watch it. So now coming back to the question, what is pressure in fluids? Pressure, we know it is the force per unit area. Then think about how the pressure actually works in fluids. Now by the word fluid, what I mean is, I hope you all know it, ये जो fluids यहाँ पे हमने लिखा है, इस fluid का मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं इसके. So fluids can either be a liquid, या तो कोई liquid हो सकता है वो, या फिर वो कोई gaseous या फिर कोई gas हो सकता है. It can be either a gas or a liquid. So in our today's lecture, we are going to focus on understanding the pressure in fluids and especially in liquids. कि प्रेशर जो है वो लिक्विड्स में कैसे काम करता है और लिक्विड्स में जो प्रेशर होता है वो कैसे होता है और उसके क्या क्या नेम्स है, क्या क्या टर्म्स हैं उनके, क्या हम लोग उन्हें कहते हैं, राइट? सो प्रेशर इन फ्लूइड्स, अगर हम लोग बात करें प्रेशर इन फ्लूइड्स की, तो प्रेशर जो है वो लिक्विड्स में भी लगता है, गैसेस में भी लगता है, बट आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि लिक्विड्स में जो प्रेशर है वो कैसे लगता है और किन किन तरीके के प्रेशर्स होते हैं लिक्विड्स के अंदर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेशर्स वी हैव इन लिक्विड्स. सो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, लिक्विड्स और गैसेस, एंड प्रेशर कहने का मतलब कि जो लिक्विड है वो एक्चुअल में क्या करता है, लिक्विड जो है वो प्रेशर लगाता है, बिकॉज लिक्विड ऑल्सो हैज अ मास. तो उसके पास अगर मास है तो इट ऑल्सो हैज अ वेट, इट कैरीज अ वेट, एंड ड्यू टू द वेट इफ द लिक्विड इज पोर्ड इन अ कंटेनर, लिक्विड अगर किसी कंटेनर में होगा तो इट विल ऑल्सो हैव अ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. अब वो लिक्विड अपने वेट के वजह से उस एरिया पे फोर्स लगाएगा. नाउ दैट इज कॉल्ड प्रेशर. सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड स्पेशली इन लिक्विड्स. सो बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू एंड यू मस्ट हैव नोटिस दिस. ये बहुत कॉमन है, आप देखते होंगे कि जो जनरली जो वाटर आप कहते हो जो टैंक्स होते हैं, वाटर के टैंक्स, हमने अपने घर में भी वाटर टैंक्स लगा रखे हैं. इवन आप देखोगे बहुत सारे वाटर टैंक्स, जो बड़े बड़े वाटर टैंक्स हैं वो स्ट्रीट्स पे मिलते हैं. हमें अपने एरिया में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा वाटर टैंक होता है. तो ये जो वाटर टैंक्स हैं वो जनरली इतने हाइट्स पे क्यों लगाए जाते हैं? आप देखोगे यहाँ पे पहले पिलर से हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर फिर हमने ये वाटर टैंक को प्लेस किया है. तो ये जो वाटर तो इसके अंदर स्टोर्ड है, इसका क्या काम है? इसको तो हम लोग नीचे भी लगा सकते थे, फिर भी हम लोग ये इतना स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सीढ़ियाँ बनाते हैं. फिर हमें ये जो वाटर टैंक है जिसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इट कैन स्टोर लाइक थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर्स,
तो ये इतने हाइट पे क्यों बनाते हैं हम लोग, राइट? और ये हाइट बनाने से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है ये टूट जाए, तो उससे अच्छा इसको नीचे बना लेते हैं। देन थिंक व्हाई वी हैव डन दिस, क्यों ऐसा किया जाता है, वाटर टैंक्स को इतने हाइट नहीं क्यों लगाते हैं? सो आज के लेक्चर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। नाउ यू जस्ट हैव टू स्टे विथ मी एंड यू विल बाय योरसेल्फ अंडरस्टूड दैट व्हाई दिस इज द केस, क्यों ऐसा किया जाता है। सो आर यू ऑल रेडी टू अंडरस्टैंड कि क्यों वाटर टैंक्स को इतने हाइट से लगाते हैं? सो लेट अस फिगर इट आउट, एंड उसके लिए लेट अस डू अ मिनी स्केल एक्सपेरिमेंट। एक छोटे से स्केल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी कर सकते हो। व्हाट आर द मटेरियल्स यू नीड? अब आपको ये एग्जैक्टली ये सारे मटेरियल्स तो में नहीं मिलेंगे, ये सब तो स्टैंड वगैरह ये तो लैबोरेटरीज में होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस laboratory stand, you can actually take some clips, the clamps, एक लकड़ी ले लेना और ये स्टैंड आप खुद से बना लेना, ठीक है? अब उसमें करना क्या आपको, उस क्लैंप में, ये जो क्लैंप आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसमें हमने इस पाइप को फंसा के रखा है, अब ये पाइप बेसिकली प्लास्टिक का नहीं है, ये ग्लास का पाइप है जो कि लैबोरेटरीज में होता है। अब आपके पास तो ग्लास का पाइप नहीं होगा तो आप प्लास्टिक के पाइप को यूज़ कर सकते हो, है ना? प्लास्टिक के पाइप्स को भी यूज़ किया जा सकता है। अब आप देखोगे दोनों में जो पाइप्स का साइज है वो अलग अलग है। जो एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा वेरिएशन किया। हमने एक नैरो पाइप लिया है और एक हमने ब्रॉड पाइप लिया है, और दोनों पाइप्स के नीचे एंड, हाँ, ऊपर से ये दोनों खुला होना चाहिए। इट शुड बी ओपन फ्रॉम द टॉप, ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स। एक साइड पे आपको क्या लगाना है, बलून्स लगाने, ठीक है? एक आप इसमें लगा दो, एक इसमें लगा दो। बलून्स यू कैन गेट फ्रॉम द मार्केट। दो बलून्स लेने हैं, सेम साइज का बलून लेना ज़्यादा बेटर होगा। सेम साइज के बलून्स लेने हैं और दोनों को हमें क्या करना है, पाइप्स के एक एक एंड पे लगा देना है, और दूसरे एंड से क्या करना है आपको, इसमें पानी को फिल करना है। नाउ कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, पानी जब आप फिल करोगे, सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, कंडीशन इज, बिकॉज जो एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर तरीका होना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने का। तो कंडीशन ये है, पहला कंडीशन आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों पाइप्स को आपको सेम हाइट पे, एक तो सेम हाइट पे लगा के रखना है, यानी कि दोनों, एक तो दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है? पहला कंडीशन, द लेंथ ऑफ पाइप्स should be equal. So let's say if this is 1 meter, so this is also 1 meter. Balloons के साइज सेम होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन, balloons are of equal size, तभी एक्सपेरिमेंट काम करेगा। एंड आफ्टर दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट यू विल फिल, दैट इज नॉट सेम बाय द वे। आप देख सकते हो ये ब्रॉडर पाइप है तो इसमें पानी ज़्यादा हो गया होगा, और ये नैरो पाइप है तो इसमें पानी कम है, बट दोनों के लेवल्स, पानी के जो लेवल्स हैं वो सेम रखने हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, द लेवल ऑफ वाटर इन बोथ पाइप्स, नैरो एंड ब्रॉड, इन बोथ पाइप्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। यहाँ पे मैंने मस्ट लिखा है, मतलब ये तो होना ही होना है, ठीक है? ये तो होना ही होना है। लेवल ऑफ वाटर शुड बी सेम इन बोथ द पाइप्स, यानी कि अगर आपने इसमें लेट से हाफ तक पानी भरा है, इसके हाफ लेवल तक, इसमें भी हाफ लेवल तक ही भरना है, दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि लेवल बराबर है, बट ये तो नैरो पाइप है तो इसमें पानी कम गया है और इसमें पानी ज़्यादा गया है। तो नाउ आई विल ट्राई टू कंफ्यूज यू, बट यू डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ, इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम, सॉरी इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। यानी कि नैरो पाइप की बात करें अगर हम लोग, नैरो पाइप में क्या हो रहा है, इन द नैरो पाइप, क्योंकि ये पतला पाइप है, लेवल भले दोनों का सेम है, बट क्योंकि ये पतला है तो इट मीन्स इट कंटेन्स लेस वाटर। नैरो पाइप कंटेन्स लेस वाटर एज कंपेयर टू द ब्रॉडर पाइप। लेस वाटर कहने का मतलब लेस मास, एंड लेस मास कहने का मतलब लेस वेट, इसका वेट कम होगा। ऑन द अदर हैंड ब्रॉडर पाइप में क्या हो रहा है, जो ब्रॉडर पाइप है, ठीक है, उसमें तो पानी ज़्यादा है,
that contains more water. More water means more mass, पानी का मास ज़्यादा होगा, and more mass means more weight, because we know that weight is equals to mass times the acceleration due to gravity. मास ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो वेट कम होगा. Now tell me what you will observe in the sizes of the balloon. दोनों बलून्स के साइज में आप क्या नोटिस करोगे? थिंक अबाउट इट. आई एम ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, क्योंकि इसमें पानी कम है तो इसका मास कम है और इसमें फोर्स यानी कि जो वेट है वो कम है. वेट एक तरह का फोर्स होता है, तो इस बलून पर लगने वाला फोर्स कम है. इस वाले केस में पानी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है. वेट ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ज़्यादा लग रहा है. तो फोर्स इसमें ज़्यादा लग रहा है, इसमें फोर्स कम लग रहा है. तो क्या हम लोग ये देख पाएंगे कि पर्पल वाले बलून का साइज ज़्यादा होगा और येलो वाले बलून का साइज कम होगा? व्हाट वी विल ऑब्जर्व? आई होप आप सब लोग यही सोच रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना. फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इसका साइज ज़्यादा चेंज होगा. यहाँ पे फोर्स कम लगा है तो इसका साइज कम चेंज होगा. बट व्हेन यू एक्चुअली डू दिस एक्सपेरिमेंट, कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन के अंडर ही इस पे एक्सपेरिमेंट करना है. अगर आप इस कंडीशन के अंडर ही एक्सपेरिमेंट करोगे, यू विल ऑब्जर्व इवन दो इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है, इसमें फोर्स ज़्यादा है, इसमें फोर्स कम है, दोनों बलून्स के जो साइजेस हैं वो सेम रहेंगे. द साइजेस ऑफ द बलून्स विल एग्जैक्टली बी सेम. करेक्ट? ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, यू विल फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ. अब खुद ब खुद आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों बलून्स के साइज सेम ही रहने वाले हैं. देन फिर ये क्यों हमने डिस्कस किया, इसका क्या कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे? तो दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू. अब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, उस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा, उस ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? सो देयर इज ओनली वन थिंग दैट वी कैन कंक्लूड, एंड दैट इज if the level of water in both the pipes, even though they have different size, if the level of water in both the pipes are same, the pressure at the bottom, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, तो प्रेशर ऑन बोथ द balloons that is at the bottom is same. Pressure at the bottom is same only when the levels of water in both the pipes are same. तो अगर दोनों पाइप में वाटर का लेवल सेम होगा, दोनों पाइप के बॉटम पे प्रेशर भी सेम लगेगा, चाहे वो एक साइज मतलब एक पाइप बड़ा हो, मतलब ब्रॉडर हो, एक नैरो क्यों ना हो. सो दिस इज वन थिंग वी कैन कंक्लूड. तो अगर वाटर लेवल इस चीज़ को डिसाइड कर रहा है, तो एक काम करते हैं, फिर दोनों पाइप में वाटर लेवल को चेंज करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा. क्योंकि यहाँ से तो एक ही चीज़ पता चल रहा है ना हमें. यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया? यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि दोनों पाइप्स में जो प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ वो सेम लग रहा है. क्यों? क्योंकि दोनों में पानी का लेवल बराबर है. तो पानी के लेवल को अनइक्वल कर देते हैं, एक में पानी का लेवल बढ़ा देते हैं. तो जैसे ही पानी का लेवल बढ़ा एक में, भले ही एक नैरो है और एक ब्रॉड है, क्या देखोगे आप यहाँ पे? इसका बल्ज कम है, इसका बल्ज ज़्यादा हो गया. इसका मतलब जैसे ही पानी का लेवल बढ़ा, प्रेशर बढ़ गया. पानी का लेवल कम था, प्रेशर कम था. सो नाउ वी आर 100% श्योर कि भले ही पाइप्स के साइजेस अनइक्वल हो, if the level of water is more, then the pressure is more at the bottom. If the level of water is less, pressure will be less, because you can see the bulge in the balloons are different. This balloon has bulged more, this balloon has bulged very less. So this is due to the pressure exerted by this liquid inside the container at the bottom. क्योंकि ये लिक्विड यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बल्ज ज़्यादा हुआ है. ये लिक्विड जिसका लेवल कम है वो प्रेशर कम लगा रहा है, इस वजह से इसका बल्ज कम है. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स. नाउ थिंक अबाउट इट. कैन दिस बी द रीजन दैट व्हाई द टैंक्स आर प्लेस्ड ओवर इट? क्या ये रीजन हो सकता है कि टैंक्स को हम लोग ओवर इट क्यों प्लेस करते हैं? लेट्स गो बैक, लेट्स सी, थिंक अबाउट इट. अब ये टैंक अगर नीचे होता, पानी इसमें है, लेवल ऑफ वाटर विल बी लेस, पानी का लेवल कम होता.
इसको जैसे ही हमने हाइट पे रखा तो हाइट बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पे पानी का लेवल बहुत ऊपर चला गया। पानी का लेवल मतलब ये पानी अब ऊपर हाइट पे है, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा लगाएगा या कम लगाएगा? Obviously it will exert more pressure at the bottom, and that is the reason we place the tanks over it. आप देखो ये घर में जो टैंक्स, पानी के टैंक्स होते हैं, उसको हम लोग छत पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पाइप्स के थ्रू हमारे टैप्स कनेक्टेड है, मतलब जो हमारे टैप से पानी आ रहा है वो पाइप्स के थ्रू उसी टैंक से आ रहा है। अगर वो टैंक छत पे होगा तो द हाइट विल बी मोर, हाइट ज़्यादा होगा, और हाइट ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या होगा वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से यू विल गेट अ वेरी गुड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप्स। सो दैट इज द रीजन। आई होप आप सबको यहाँ पे रीजन क्लियर हुआ है। ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट इफ the level of water in the pipe increases, if we have more water, that means the level of water increases, the pressure at the bottom will also increase. So what we can conclude here is, the pressure at the bottom of the container, जो कंटेनर है जिसमें पानी हमने फिल किया है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस, राइट। जैसे जैसे यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ेगा, प्रेशर जो बॉटम पे लग रहा है वो ज़्यादा होगा। आई होप दैट इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जब सेम लेवल था तो उस केस में प्रेशर सेम था, क्योंकि हमने एक्टिविटी देखा, एक्सपेरिमेंट किया हमने, उस एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चल रहा है। सो दिस इज द कंक्लूजन दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट एक्टिविटी। यस, वी आर गोइंग टू डू वन मोर एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने किया उससे हमने ये कंक्लूजन डिराइव कर लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी वी हैव। अगेन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। जब पानी हमने उस कंटेनर में डाला था तो पानी जो है वो बॉटम पे तो प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि बलून्स बल्ज हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेशर तो लग रहा है। सो थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? अब जो कंटेनर में पानी था उसके वॉल्स पे भी प्रेशर लग रहा है क्या? बॉटम पे तो लग रहा है, दैट वी आर वेरी श्योर, बट कैन वी से दैट द प्रेशर इज ऑल्सो exerted on the walls of the container? क्या जो प्रेशर है वो वॉल्स पे भी लग रहा है? वॉल्स कहने का मतलब जो साइड वॉल्स है उस पे। सो हाउ वी कैन प्रूव दिस? वो वाला तो हमने प्रूव कर लिया था एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करके। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो हमें वॉल्स पे प्रेशर चेक करना है ना। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। अगेन यू ओनली हैव टू टेक अ वाटर बॉटल, एक प्लास्टिक की बॉटल आप ले लो। वॉट यू हैव टू डू इज, लेट मी शो यू। लेट्स से दिस इज द बॉटल, ओके। इस बॉटल में आपको पानी फिल करना है, एंड देन यू हैव टू मेक 3 होल्स एंड एट द सेम लेवल, मतलब साइड्स पे आपको सेम, नीचे तो बंद है तो प्रेशर तो नीचे लग रहा है वो तो श्योर है। यहाँ पे साइड्स पे प्रेशर चेक करना हमें, तो साइड्स हम लोग क्या करेंगे, 3 होल्स लगाएंगे और पानी को फिल करेंगे, और तीनों होल्स को एक साथ ऑन करेंगे। ऑन करने का मतलब, अगर आप इसको मान लो एक प्लास्टिक के टेप से आप किसी तरीके से इसको आप क्लोज करके रखे हो, और पानी भरने के बाद इसको जैसे ही आप ओपन करोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, the water will starts to flow out from these holes. जो वाटर है वो इन होल से बाहर निकलना शुरू हुआ। So what does this shows? It shows that yes, the liquid do exerts the pressure on the walls of the container. तो लिक्विड जो है वो बॉटम पे तो प्रेशर लगा ही रहा है, वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने होल किया, होल से पानी बाहर आने लगा। अब वो पानी बाहर क्यों आया? क्योंकि प्रेशर लग रहा था, फोर्स लग रहा था, फोर्स की वजह से प्रेशर लगा और वो पानी बाहर आ गया। करेक्ट? सो नाउ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट बाय द वे, व्हाट वी कैन कंक्लूड नाउ? तो नाउ वी हैव अ फाइनल कंक्लूजन। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द फाइनल कंक्लूजन। इफ वाटर इज filled inside a container
if the water is filled inside the container, then first point, it exerts pressure at the bottom of the container, कंटेनर के बॉटम पे तो प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. सेकेंड कंक्लूजन, it also exerts pressure on the walls of the container. कंटेनर के वॉल्स पे भी ये प्रेशर लगाएगा. So these are the two final conclusions that we have got. Now let me tell you the names of these pressure. जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेशर के टाइप्स होते हैं. तो when the pressure is exerted at the bottom of the container, this kind of pressure is called the downward pressure. इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड प्रेशर. And when the pressure is exerted by liquids on the walls of the container, the pressure is called lateral pressure. Lateral pressure, or you can also call it sideways pressure, because the pressure is on the sides. So these are the different types of pressures that we have, that is exerted by the liquids on the container in which it is filled. तो अगर लिक्विड को हमने किसी कंटेनर में फिल किया तो उस केस में लिक्विड जो है वो बॉटम पे तो प्रेशर लगा ही रहा है, दैट इज कॉल्ड द डाउनवर्ड प्रेशर. वो लिक्विड वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड द लैटरल प्रेशर और द साइडवेज प्रेशर. सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स दैट वी हैव. नाउ I have one more question for you, with which we are going to finally conclude our today's discussion. आज के डिस्कशन में हमने बस यही समझना था कि प्रेशर जो है वो लिक्विड्स में कैसे लगता है. So second question, now the next question, the last question for today's session is this. Look at this here, this is a dam. एक साइड पे वाटर है, एक साइड पे वाटर कम है. मतलब डैम का काम क्या होता है, पानी को रोक के रखना है ना. हिंदी में इसको बांध कहते हैं. तो पानी को बांध के रखा है. लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द डैम. ऊपर से ये बहुत नैरो है, बट जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है ये ब्रॉड होता जा रहा है. मतलब इसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है. वाई डू द बेस ऑफ अ डैम इज मच ब्रॉडर दैन द टॉप. जो डैम के बेसिस होते हैं वो टॉप के कंपैरिजन में बेस जो है वो ब्रॉड क्यों होता है. थिंक अबाउट द रीजन बिहाइंड इट एंड लेट मी नो योर आंसर. You can put your answer in the comment section as well. Let me see how many of you can think about it. So, क्यों ऐसा हो रहा है? Again, look at this. What is this? Water. पानी है इधर. ऊपर पानी पूरा नीचे तक भरा है. And we just discussed कि when the level of water increases, the pressure at the bottom will also increase. Downward pressure लग रहा है. Lateral pressure भी लग रहा है. Walls पे भी तो pressure लग रहा है. ऊपर की तरफ पानी का लेवल कम है तो इधर सिर्फ लैटरल प्रेशर काम कर रहा है. बट थिंक अबाउट द बेस. जो बेस है वहाँ पे दो तरह के प्रेशर लग रहे हैं. एक तो डाउनवर्ड प्रेशर लग ही रहा है, लैटरल प्रेशर भी लग रहा है. लैटरल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, अगर ये डैम का बेस पतला होता तो ये लैटरल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो उसको तो तोड़ देता. एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग यहाँ पे बेसिस को जनरली क्या करते हैं, ब्रॉडर बनाते हैं, ताकि नीचे जो पानी है उसके वजह से लगने वाले जो दोनों प्रेशर्स हैं, डाउनवर्ड प्रेशर एंड लैटरल प्रेशर, वो ये डैम का जो बेस है उसको बियर कर सके, उसको टॉलरेट कर सके. एंड दैट इज व्हाई मेक इट ब्रॉडर. ओके, सो देयर इज आंसर इज वेरी सिंपल. आई होप यू ऑल कैन थिंक लाइक दिस. सो व्हाट वी कैन से, द बेस ऑफ अ डैम इज मेड much broader than the top because the pressure at the bottom of the dam is very high, because there are two pressures exerted by the liquid, downward pressure as well as the lateral pressure. In order to bear the pressure, in order to tolerate the pressure and don't let the dam break, the bases are made broader. So that is the simple reason. And with this we can say we have finally concluded the discussion of pressure in fluids, pressure in liquids.
In the next lecture, we will be discussing pressure in air. Pressure in air, and that is going to be very, very important, because if I show you the name of the chapter, what does the name of chapter says? Pressure, winds, storms, and cyclones. So the next lecture is going to be very important. Why? Because if you understand how the pressure works in air, then you will be able to understand very easily that how winds are formed, how storms and thundering occurs, and how cyclones are generated. So our next lecture is going to be very important just to understand these three in easier way. So make sure you hit the subscribe button, hit the bell icon, so that जब भी next lecture upload हो आपके लिए, you will get notified and you will watch it as soon as possible. So with this, we have finally concluded the lecture 2 of pressure in fluids. Now we'll meet in the lecture 3 of the same topic, pressure in fluids, but we will be understanding the pressure in air. And if you understood the concepts जो मैंने आपको बताया, make sure you like the video, share it with your friends, and do let us know in the comment section that how you feel, what are the things you feel after watching the lecture. So we will be very happy to know your thoughts about it. So see you all in the next class. Till then, have fun, enjoy your day, and thank you very, very much for watching the lecture till then. Have a great day ahead. Take very good care of yourself. Bye everyone. See you in the next class.